authority. You have to take a permission from the government authority. Now, what does that government authority do? The government authority is the acoustic department. Acoustic department का मतलब क्या है? Acoustic departments वो departments होते हैं जो sound की production, transmission वगैरह पर ध्यान देते हैं. मतलब अगर आपने एक सिनेमा हॉल ओपन किया है तो acoustic department वाले आएंगे, वो आपका सब कुछ चेक करेंगे कि आपने प्रॉपरली क्लोथिंग मटेरियल्स यूज किया है क्या, कर्टन्स यूज किया है क्या, कहीं आपकी दीवारें इतनी वीक तो नहीं है कि मतलब थोड़ा सा भी अगर आपने 3D वॉइस वगैरह चलाया या क्राउड आपने ज्यादा ले लिया तो वहां पे एक्सीडेंट के चांसेस ना बढ़ जाए. सो वो सारी चीजों को ध्यान देने के लिए पहले आपको एकॉस्टिक डिपार्टमेंट से साइन लेना पड़ता है. अगर उन्होंने साइन किया, सब कुछ उनको करेक्ट लगा और उन्होंने साइन किया, तो ही आपके हॉल एंड सिनेमा थिएटर्स वगैरह आप चला सकते हो. और वही लोग डिसाइड करते हैं कि आपके सिनेमा थिएटर्स की कैपेसिटी कितने लोगों की है. मतलब कुछ सिनेमा थिएटर्स होते हैं जिनके 40 या 30 की कैपेसिटी होती है और कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब दे कैन अलाउ 100 ऑल्सो. सो वो सारी चीजें एकॉस्टिक डिपार्टमेंट डिसाइड करती है. क्योंकि आप 100 लोगों का क्लैप आपका जो पर्टिकुलर हॉल है वो बर्दाश्त कर सकता है, तो यू कैन अलाउ 100 people to sit into the cinema halls or theaters. So acoustic is the branch of physics which basically deals with the transmission of sound. Transmission of sound or reception of sound से related जो भी department काम करता है, that is acoustic department. Okay. Apart from this, the thing that we are going to study today is not that important as your entrance point of view as well as your theory point of view, because no one is going to ask you that what are the conditions to open a cinema hall, but still it is given in your book, so we have to study it. So let's move ahead. You people will read and I'll explain you. This is how it will go for some time. So इसीलिए मैंने बोला कि next time there is a possibility that I'll tell you people to switch on your cameras and sit. So let's go ahead. Keep your textbooks. Everyone have textbook in the front of them. सबके पास textbook है? Yes, miss. Yes, miss. Okay. So let's start. Mahendra, start reading the acoustic part. Yes, miss. The branch of physics which deals with the study of production, transmission, and reception of sound is called acoustics. This is Take this useful slide. during the The construction branch of of physics. theaters. Wait. Take this slide. The branch of physics which deals with the study of production, transmission, and reception of sound is called as acoustic. Take करके लो ये statement. Keep pencil or pen in with you. People. आगे read करूँ मैं? Yes, go ahead. This is useful during the construction of theaters and auditoriums. While designing an auditorium, proper care for the absorption and reflection of sound should be taken. Otherwise, audience will not be able to hear the sound clearly. For proper acoustics in an auditorium, the following conditions must be satisfied. First, the sound should be heard sufficiently loudly at all the points in the auditorium. The surface behind the speaker should be parabolic with the speaker at its focus, so that the distribution of sound is uniform in the auditorium. Now wait. Reflection of Now what? Of course, simple सा फंडा है कि if you enter into some cinema halls or theater, आप कहीं भी कॉर्नर में बैठो, आपको प्रॉपरली जो भी सामने पीछे चल रही है उसका साउंड आपको प्रॉपरली सुनाई देना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट वाले को अच्छे से सुनाई दे रहा है, whereas अगर आपने कोई कॉर्नर की सीट ले ली तो आपको आवाज ही नहीं आ रही कि वो क्या बोल रहा है. सो इफ यू वांट टू मेक अ प्रॉपर ऑडिटोरियम और प्रॉपर सिनेमा हॉल, तो जहाँ जो भी मूवी चल रही है उसका साउंड ऑल ओवर द सिनेमा हॉल प्रॉपरली सुनाई देना चाहिए. कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं होना चाहिए. दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर हैविंग अ प्रॉपर सिनेमा हॉल. दूसरी चीज, अगर आप चाहते हो कि ये चीज हो, तो जहां पर भी आप स्पीकर रखते हो, स्पीकर का जो पीछे का एरिया होता है इट शुड बी पैराबोलिक. पैराबोलिक मतलब एलिप्स का जो आधा, अगर आप एलिप्स को हाफ काट दो, तो जो आधा पार्ट होता है उसको पैराबोलिक शेप बोलते हैं. तो स्पीकर के पीछे का एरिया शुड बी पैराबोलिक. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? पैराबोलिक शेप समझा क्या है? इफ यू कट अ स्फीयर को आप अगर आधे से काट दो, तो वो जो आधा सेक्शन है वो आधा सेक्शन को हम पैराबोलिक शेप बोलते हैं. इज इज वेरी क्लियर व्हाट आई सेड? पैराबोलिक. सो स्पीकर के पीछे का सेक्शन शुड बी पैराबोलिक. और आपको पता है कि स्फीयर के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फोकस. तो आपका स्पीकर जो है, सॉरी,
स्पीयर के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फोकस, दो फोकस होता है अगर आपको याद हो, F1 और F2। तो आपका जो स्पीकर होता है वो किसी एक फोकस पे रखा हुआ होना चाहिए। तो अगर अगर आपका स्पीकर फोकस पे रखा हुआ होगा तो आपका साउंड ओवरऑल इन द हॉल प्रॉपरली स्प्रेड होगा, क्योंकि फोकस पे रखी हुई चीज जो भी चीज एमिट करती है वो ऑल ओवर द प्लेस इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम में। सो अगर आप चाहते हो कि सिनेमा हॉल के हर कॉर्नर में प्रॉपरली आवाज सुनाई दे तो आपको स्पीकर के पीछे का एरिया पैराबोलिक रखना होगा और स्पीकर को फोकस के ऊपर रखना होगा कि हर जगह सेम अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी स्प्रेड हो, ना कहीं कम ना कहीं ज्यादा। इज दिस वेरी क्लियर? Yes, miss. गो अहेड महेंद्र। Yes, miss. The reflection of sound is helpful in maintaining good loudness through the entire auditorium. Second, echoes and reverberation must be eliminated or reduced. Echoes can be reduced by making the reflecting surfaces more absorptive. Echo will be less if the auditorium is full. As I said, reverberations and echoes should be avoided for sure. And for that, you have to use the good absorbing materials like clothes or curtains, something like that. Go ahead. Third point, unnecessary focusing on of sound should be avoided and there should not be any zone of poor audibility or region of silence. For that purpose, curved surface of the wall or ceiling should be avoided. ऑफकोर्स सिंपल सा फंडा है, कहीं ज्यादा और कहीं कम सुनाई नहीं देना चाहिए। इसके लिए सिर्फ स्पीकर का पीछे का सेक्शन सिर्फ पैराबोलिक होगा, बाकी और कहीं पर भी कर्विंग जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बना होना चाहिए। इट शुड बी प्रॉपरली स्क्वायर, कि कहीं पर कम साउंड ना हो और कहीं पर ज्यादा साउंड का फोकसिंग ना हो। दिस इज वेरी क्लियर? Yes. गो Yes, अहेड। miss. Fourth point, Echolean effect. It is due to the mixing of sounds produced in the hall by the echoes of sound produced in front of regular structures like the stairs. To avoid this, stair type construction must be avoided in the hall. यस, मतलब कोई अगर आप प्रॉपरली एक अच्छी सी मूवी देख रहे हो और अचानक से कोई स्टेयरकेस पे चढ़ चढ़ के आए और उसकी आवाज आपको सुनाई देने लगे एंड इट इज क्रिएटिंग अ डिस्टर्बेंस। सो बेसिकली वो सारी चीजें अवॉइड करने के लिए स्टेयर जैसा कंस्ट्रक्शन ना होकर अगर स्लोप जैसा कंस्ट्रक्शन हो तो इट इज मच बेटर। एंड सेकेंड इज, अगर आपने देखा भी होगा तो जो सिनेमा हॉल्स के जो स्टेयर केसेस होते हैं वो थोड़े से लंबे लंबे होते हैं। लाइक आप थोड़ा सा चलोगे फिर देयर इज अ बिग गैप, फिर थोड़ा सा चलोगे फिर देयर इज अ बिग गैप, मतलब ऐसे कंटिन्यूस स्टेयर केस नहीं होता। The reason is to avoid the sound which is created from the staircase for sure. Go ahead. Yes. Fifth point, the auditorium should be soundproof when closed so that should sound cannot enter from outside. सिंपल सा फंडा है, कोई अच्छी सी या फिर डरावनी सी मूवी देख रहे हो और अचानक से बाहर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ जाए तो यू नॉट एंजॉय दैट, राइट? इट विल बी अ डिस्टर्बेंस फॉर यू पीपल। सो आपका जो भी चीज बना हुआ होना चाहिए दैट इज फॉर श्योर द वॉल्स एंड द रूफ इट शुड बी साउंड प्रूफ सो दैट बाहर का कोई भी साउंड अंदर आकर आपको डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करे। गो अहेड। Sixth point, for proper acoustics, no sound should be produced from the inside fittings, seats, etc. Instead of fans, air conditioners may be used. Soft action door closers should be used. Of course your fan create a noise, so जितने अच्छे सिनेमा हॉल में जाओगे उतना अच्छा फैसिलिटीज मिलेगा। So instead of using a fan, they should go for the air conditioners or something which will not create any sound and any disturbance while having a like while watching some movie or something like that. So these are the some conditions to have a perfect cinema hall, ऐसा बोल सकता है, but no one is going to ask you for this. So let's go ahead with the next part, that is acoustic observed in the nature. So before going ahead in the about the acoustic observed in the nature, I'll let you know about the things what we are going to study. See, you know that कि जो बैट होते हैं, राइट, उनका ऐसा फंडा है कि दे कैन नॉट ट्रैवल इन लाइट, मतलब दे बिकम ब्लाइंड इन लाइट। उनको लाइट इतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता चलने के लिए या नेविगेट करने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सो बेसिकली वो साउंड एनर्जी का यूज करते हैं फॉर नेविगेशन। वो साउंड एनर्जी को ऐसे बाहर की तरफ रिलीज करते हैं, सामने अगर कोई ऑब्स्टिकल है तो साउंड एनर्जी उस ऑब्स्टिकल से टकरा कर रिटर्न बैक आ जाता है। उनको उस चीज से पता चल जाता है कि ओके दिस पाथ इज नॉट द करेक्ट पाथ, सामने कुछ तो है जहां पर मेरे टकराने के चांसेस है। सो दे टेक सम अनदर रूट, वहां पे वो साउंड भेजते हैं। अगर वहां से रिफ्लेक्शन नहीं आया तो दे टेक दैट रूट जहां से रिफ्लेक्शन रिटर्न बैक नहीं आया हुआ। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से?
तो इस तरीके से बैट यूजेस साउंड एनर्जी फॉर द नेविगेशन। साउंड एनर्जी जो है वो नेविगेशन के लिए यूज करते हैं बैट्स। सेम विद द डॉल्फिन्स। डॉल्फिन्स का भी ऐसा ही फंडा है। फॉर ट्रैवलिंग इन द सी, डॉल्फिन्स यूज साउंड एनर्जी फॉर द नेविगेशन अगेन। पहले जब लोग सी सोरिंग वगैरह के लिए ट्रैवलिंग वगैरह नेविगेटिंग वगैरह करते थे सी के थ्रू, तो वो लोग एक पेट डॉल्फिन रखते थे जो वो उनको डायरेक्शन बताती थी कि किस डायरेक्शन में जाना ज्यादा बेटर है। तो जिस डायरेक्शन में डॉल्फिन उनको सजेस्ट करती थी, लोग उसी डायरेक्शन में चलना पसंद करते थे कि वहां पर ऑब्स्टेकल्स कम है। सो इस तरीके से बैट एंड डॉल्फिन्स दोनों भी साउंड एनर्जी का यूज करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर नेविगेट करते हैं, ट्रेवल करते हैं। इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? So we can say from such observations that our animals have much more idea about using and applying physics हमारे कंपेयर में। हम तो उनको जस्ट यूज कर रहे हैं, जीपीएस सिस्टम बना रहे हैं, काफी सारे वेव्स का यूज करके हम ऑब्स्टिकल्स का पता कर रहे हैं, बट दे नो इट much more earlier than us. And it's not only about dolphin or bat. If I talk about cat, dog, anything, they have much more idea about applying physics in their life. कभी कैट वगैरह को जंप करते हुए देखा है? दे व्हेन दे जंप, वो लोगों का जंपिंग सिचुएशन ऐसा होता है कि अगर उनको नहीं लग रहा है कि वो लैंड कर सकते हैं प्रॉपर्ली, तो दे विल नॉट जंप। कभी अगर आपने कभी कोई पेट डॉग या पेट कैट वगैरह देखा हो, तो कभी उनको ऑब्जर्व करना कि व्हेन दे जंप, वो प्रॉपरली सब कुछ डिफाइन, लोकेशन डिफाइन करके जंप करते हैं। ऐसे ही नहीं करते। हम तो फिर भी अंदाजे लगाते हैं, ठीक है कूद जाते, लग गई चोट तो लग गई, ऐसा होता है हमारा। पर उनका ऐसा नहीं होता। दे डिफाइन एवरीथिंग प्रॉपरली, दे सेट इट एंड देन दे जंप। सो समवेयर आई कैन से दैट आवर एनिमल्स आर मच स्मार्टर देन अस फॉर श्योर. So this was all about the bats and the dolphins, which uses the sound energy for their directional navigation and something. Go ahead, Mahendra. Yes, miss. Acoustic observed in nature. The importance of acoustic principle goes far beyond human hearing. Several animals use sound for navigation. First point, bats depend on sound rather than light to locate objects, so they can fly in total darkness of caves. They emit short ultrasonic pulses of frequency 30 kHz to 150 kHz. The resulting echoes give them information about location of the obstacle. Second point, dolphins use an analogous system for underwater navigation. The frequencies are subsonic, about 100 Hz. They can sense an object of about the size of a wavelength, that is 1.4 meter or larger. Medical applications of acoustics. Now wait, Mahendra. Now this is something very important to study and understand. Medical applications for acoustic. When you talk about medical applications of acoustic, there are many applications where we use waves, right? For example, the very first application for the acoustic is your what I can say, for the treatment of kidney stone. Basically, kidney stone अगर किसी को होता है तो you should make that person feel good कि ठीक है, it can be treat किया जा सकता है. And by using a sound wave energy, किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट आप विदाउट इन्वेसिव सर्जरी, मतलब बड़ी सर्जरीज के बिना ही कर सकते हो. हाउ वी नीड टू डू इट? अगर समझो किसी को किडनी स्टोन हुआ है और वो किडनी स्टोन का जो स्टोन का साइज है वो थोड़ा बड़ा है, तो बेसिकली किया क्या जाता है कि उस स्टोन के ऊपर, एज आई सेड कि साउंड एनर्जी के अंदर इतनी ताकत होती है कि इट कैन ब्रेक द वॉल्स, राइट? अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा इस चीज को. सो किया क्या जाता है कि उस स्टोन के ऊपर साउंड एनर्जी को फेंका मतलब फेंका नहीं बोल सकते, इल्यूमिनेट किया जाता है, उसके ऊपर डाला जाता है. और जैसे ही वो साउंड एनर्जी को फोकस करके उस स्टोन के ऊपर हम लोग अलाउ करते हैं गिरने के लिए, साउंड एनर्जी में इतनी ताकत होती है कि वो स्टोन को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है. तोड़ने के बाद विद द हेल्प ऑफ सम मेडिसिन हम वो छोटे छोटे पीसेस को वाया यूरिनेशन प्रोसेस, वो मेडिसिन के हेल्प से यूरिनेशन प्रोसेस के थ्रू उसको बाहर निकाल देते हैं. सो इस तरीके से फॉर रिमूविंग अ किडनी स्टोन हमको बहुत बड़ा सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ती. सो बेसिकली लेंसेज वगैरह यूज करके वो जो साउंड एनर्जी है उसको स्टोन के ऊपर फोकस करते हैं. जैसे आपके लाइट को किसी एक पॉइंट पे फोकस, लेजर देखा है कैसे लेजर को एक जगह पे फोकस किया जाता है, वैसे ही साउंड एनर्जी को लेंसेज यूज करके वो पूरी एनर्जी को स्टोन के ऊपर फोकस किया जाता है, सो दैट वो स्टोन ब्रेक हो जाता है. स्टोन जब छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाता है
तो बाय यूजिंग सम और द अदर मेडिसिन उसको यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से. सो विदाउट हैविंग अ बिग सर्जरी you can go for the treatment of the kidney stone by this process. Apart from this, your sound energy is also used for prenatal imaging. Prenatal imaging का मतलब होता है बेबी के बॉर्न होने से पहले की इमेजिंग, जो अल्ट्रासाउंड वगैरह की जाती है. प्रीनाटल इट मीन्स बिफोर बर्थ. ओके, सो अगर मतलब जो भी फीटस है इनसाइड द बॉम्ब, वो फीटस का प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी हार्ट बीट्स प्रॉपर है या नहीं है, बच्चे का अगर बच्चा 4 वीक्स का है तो 4 वीक्स के हिसाब से फीटस को जितना डेवलप होना चाहिए था उतना डेवलप है या नहीं है, वो सारी चीजें भी साउंड एनर्जी को अंदर की तरफ पास करके उनका इमेजिंग तैयार करके इन द स्क्रीन देखा जाता है. कि as I don't know whether you people know that there is a cell division which is called as mitosis and meiosis. वो सारी चीजों का डेवलपमेंट होता है इनसाइड द मदर वॉर्म. तो वो सारी चीजें प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, वो भी साउंड एनर्जी के हेल्प से निकाला जाता है. So it is used for the treatment of the for sure kidney stone. It is used for prenatal imaging, that is ultrasound वगैरह में इसको यूज किया जाता है. Third is it is used also for the tumors and cancer detection inside the body. कि अगर कहीं पर अंदर कोई ट्यूमर या कैंसर के होने का चांसेस है तो बॉडी के ऊपर साउंड एनर्जी को भेजकर उसके रिफ्लेक्शन देखे जाते हैं. अगर कहीं से रिफ्लेक्शन रिटर्न बैक आ रहा है जो एक्सपेक्टेड नहीं है, कि यहाँ से टकरा कर रिटर्न नहीं आना चाहिए, बट वहां से हमको कुछ रिटर्न आता हुआ दिख रहा है, मतलब देयर इज अ सेल विच इज एक्यूमुलेटिंग देयर, फिर हम लोग उसके लिए ऑफकोर्स वी गो फॉर बेटर स्कैनिंग देयर, वी गो फॉर MRI, वी गो फॉर सिटी स्कैन, अलग अलग स्कैनिंग की जाती है अपार्ट फ्रॉम द अल्ट्रासाउंड. So somewhere waves are used for the detection of cancer and tumor cells inside the body also. Apart from this, it is also used for the treatment of arthritis. Arthritis is a disease. इसमें होता क्या है कि आपके जो bones होते हैं, bones के बीच में, दो bones के बीच में there is a gel type of material जो आपके bones को bend करने में मदद करता है. It is there present in the knee. It is present in the what I can say फिंगर्स का जो स्केलेटल वाला पार्ट है, जॉइंट्स, जितने भी जॉइंट्स है हर जगह पे वो जेल प्रेजेंट होता है. बट एक एज के बाद होता ये है कि वो जेल धीरे धीरे कम हो जाता है और वहां पे सॉल्ट डिपोजिशन हो जाता है, सॉल्ट आकर सेटल होने लगता है. और ऐसे लोगों को मोस्टली हाथ बेंड करने में, पैर बेंड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है. सो उसका ट्रीटमेंट के लिए भी साउंड एनर्जी का यूज किया जाता है कि वहां पर अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उस इन्फेक्शन को हम साउंड एनर्जी के हेल्प से ट्रीट कर सकते हैं. So even your sound energy is used for the medical treatments like kidney stone, prenatal imaging, finding out or detection of cancers and tumors inside the body, and it is also used for the treatment of arthritis. This is very clear. What is the medical uses of the sound energy? Yes, clear? yes. Okay, someone else will read. कौन read करेगा? दिव्या read करो. Medical application of acoustics. A. Shock waves, which are high pressure, high amplitude waves, are used to split kidney stones into smaller pieces without an invasive surgery. A shock wave is produced outside the body and is then focused by a reflector or acoustic lens so that as much of its energy as possible converges on the stone. When the resulting stresses in the stone exceeds its tensile strength, it breaks into small pieces which can be removed easily. B. Reflection of ultrasonic waves from regions in the interior of body is used for ultrasonic imaging. It is used for prenatal before the birth examination, detection of anomalous conditions like tumor, etc., and the study of heart valve action. C. At very high power level, ultrasound is selective destroyer of pathological tissues in treatments of arthritis and certain type of cancer. This is very clear to everyone. Yes, miss. Okay. Now, what are the other applications of the sound energies? Of course, the very first application is sonar, sound navigation and ranging. For example, अगर अंदर like सी वगैरह में आप ट्रैवल कर रहे हो और अंदर कोई चीज डूब गई है, तो वहां पर सोनार का यूज किया जाता है फॉर फाइंडिंग आउट इफ समथिंग इज सबमर्ज्ड इनसाइड द वाटर. अंदर की तरफ साउंड एनर्जी को भेजा जाता है. जब साउंड एनर्जी अंदर जाता है, उस जो भी चीज अंदर डूबी हुई है उससे टकरा कर रिटर्न बैक आता है. एक्सपेक्टेड टाइम और जितने टाइम में रिटर्न बैक आ रहा है वो देखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर एक साउंड एनर्जी नीचे की तरफ भेजी, उसको ग्राउंड को टच कर रिटर्न
टच करके रिटर्न आने में लेट्स से उसको 5 मिनट का टाइम लगना चाहिए था, बट जब वो चीज नीचे की तरफ गई टकरा कर वो 2 मिनट में ही रिटर्न आ गई। इसका मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नीचे कुछ अवेलेबल है जिससे साउंड एनर्जी जल्दी टकरा कर ऊपर आ रही है। सो इन दिस वे अगर कोई चीज अंदर की तरफ डूबी हुई है तो ये टाइम निकाल करके, टाइम अगर जितना टाइम लेना चाहिए अगर एक्सपेक्टेड टाइम में रिटर्न बैक आ रहा है मतलब कुछ नहीं डूबा है, वहां पर कुछ अवेलेबल नहीं है। बट अगर अंदर कोई चीज है तो साउंड एनर्जी उस चीज को टकरा कर जल्दी रिटर्न बैक आ जाएगा। सो मतलब देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ समथिंग इनसाइड दैट पर्टिकुलर लेयर ऑफ द वाटर। सो इस तरीके से जो रिटर्न आने वाला टाइम है, जाकर आने वाला जो टाइम है, उसका यूज करके ये फाइंड किया जाता है कि वेदर देयर इज समथिंग सबमर्ज्ड इनसाइड और नॉट। इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो ऐसे अगर कोई बोट वगैरह समर्ज हो गई है या कोई चीज डूब गई है या कहीं पर हम लोग खजाना वगैरह ढूंढने जा रहे हैं या अंदर कोई सी वगैरह के अंदर कुछ प्रेजेंट है, वो सब चीजें निकालने जा रहे हैं, तो वहां पर साउंड एनर्जी का यूज करते हैं बाय सेंडिंग द अल्ट्रासोनिक साउंड इन द सी। उसके अलावा आप लोग ने ये मूवी देखी है भारत? देखिए Yes, miss. कितने लोगों ने देखी है? जैसे हैं ऑलमोस्ट सबने ही देखी होगी, मतलब पुरानी मूवी है अब तो। सिर्फ 2 लोगों ने देखी है, तुम लोगों ने नहीं देखी? विस्मय तुमने नहीं देखी? नहीं देखी? ओके, मींस यू आर नॉट अ फैन ऑफ सलमान खान। फाइन, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। सो इसलिए भारत देखने के लिए बोल रही थी, ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग कोई साइंटिफिक मूवी नहीं है फॉर श्योर। इसलिए बोल रही थी क्योंकि भारत मूवी में एक्चुअली दोस पीपल वर गोइंग इनसाइड द व्हाट आई कैन से सरफेस ऑफ द अर्थ, अंदर जाते हैं वो लोग और ऑयल डिपोजिशंस निकालते हैं। नॉर्मली होता ये है कि ऑयल डिपोजिशंस वगैरह निकालने के लिए ह्यूमन बींग्स को अंदर भेजा जाता है और वहां पे वर्कर्स वगैरह जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि अंदर ऑयल है, तो वो लोग प्योरिफिकेशन के लिए बाहर उन लोगों को बताते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑयल अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ से हमको ऑयल अंदर से अंडरग्राउंड से ऑयल निकाल कर फिर वो बाहर प्योरीफाई होता है और अलग अलग जगह पे ट्रांसफर किया जाता है फॉर श्योर। सो व्हाई आई वेंट फॉर दैट इज ऑल बिकॉज कि कभी कभी क्या होता है अर्थ के अंदर का जो सिस्टम है वो बहुत ही डेंजरस है बोला जाए तो। अर्थ के अंदर का सिस्टम इतना डेंजरस है कि अचानक से अर्थ के अंदर कुछ भी हो सकता है। मतलब जो लोग अंदर जाकर काम करते हैं इट इज वेरी रिस्की वर्क, हालांकि पैसा बहुत मिलता है वेरी श्योर उन लोगों को, बट उनको एक साइन करवा के लिया जाता है कि अगर अंदर आपके साथ कुछ भी होता है तो दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज योर प्रॉब्लम। सो बेसिकली होता क्या है अर्थ के अंदर, अर्थ के अंदर कभी भी पॉइजनस गैसेस निकलना चालू हो जाती है, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कभी भी अंदर गैस मॉलिक्यूल्स निकलना चालू हो जाए। सो लोगों को अंदर जाने से पहले ही वहां पर साउंड एनर्जी भेजकर ये पता किया जाता है कि अगर साउंड एनर्जी रिटर्न जाकर अंदर रिटर्न बैक आ रहा है और उसमें जो उनको एक्सपेक्टेड था कि जैसे जाकर आना चाहिए वैसे ही रिटर्न बैक आ रहा है, मतलब अंदर कोई गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, बट अगर वो साउंड एनर्जी को अंदर भेज रहे हैं और उनको रिफ्लेक्शन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, वहां पर उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है अंदर, मतलब देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ पॉइजनस गैसेस इनसाइड द अर्थ सरफेस। वो टाइम पे फिर वो वर्कर्स को अंदर नहीं भेजते गैस, वो अंदर नहीं भेजते अर्थ सरफेस के कि वहां से ऑयल निकाला जाए। सो अंदर माइंस वगैरह में कई गैस प्रेजेंट तो नहीं है पॉइजनस, या कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस वगैरह का इमल्शन तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीजों का भी प्रेजेंस निकालने के लिए साउंड एनर्जी का यूज किया जाता है। सो किसी भी वर्कर को अंदर भेजने से पहले दे डिटेक्ट इट आउट कि वहां पर कोई तूफान वगैरह तो नहीं आया है गैस का। सो फॉर दैट दे जस्ट ट्रांसफर द साउंड एनर्जी इनसाइड द अर्थ सरफेस, वहां से रिफ्लेक्शन आता है साउंड एनर्जी का, जब रिफ्लेक्शन आता है वो लोग उसका इमेजिंग करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, अगर रिफ्लेक्शन प्रॉपर आ रहा है तो ही लोगों को अंडरग्राउंड में जाने के लिए अलाउ किया जाता है। अगर रिफ्लेक्शन प्रॉपर नहीं आ रहा है तो वो उनको अंदर नहीं भेजते फॉर द व्हाट आई कैन से डिटेक्शन ऑफ ऑयल एंड अगर ऑफ कोर्स डायमंड एज वेल। दिस इज वेरी क्लियर व्हाट आई सेड। सो इस तरीके से सोनार के लिए आपका साउंड इमेजिंग सिस्टम का यूज करते हैं एंड इवन डिटेक्शन ऑफ सम पॉइजनस गैसेस इनसाइड द अर्थ सरफेस के लिए भी साउंड एनर्जी का यूज किया जाता है। दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन व्हाट आई सेड, समझा? सो Yes, लेट्स गो miss. अहेड। Who's ready? Miss, क्या दिव्या, गो अहेड। Hello, miss. other application. हाँ वेट बोलो साक्षी।
मिस मेरे घर पे इलेक्ट्रिशियंस आए तो मैं कैमरा ऑफ कर सकती हूँ? ओके ओके कर लो। Other कर दीजिए। application of acoustics. A. Sonar is a acronym for sound navigation ranging. This is a technique for locating objects underwater by transmitting a pulse of electrosonic sound and detecting the reflected pulse. The time delay between transmission of a pulse and the reception of a reflected pulse indicates the depth of the object. This system is useful to measure motion and position of the submerged object like submarine. The acoustic principle has important application to environmental problems like noise control. The design of quiet mass or transmit vehicle involves the study of generation and propagation of sound in the motors, wheels, and supporting structure. C. We can study properties of the earth by measuring the reflected and refracted elastic waves passing through its interior. It is useful for geological studies to detect local anomalies like oil deposits, etc. Is this very clear? So the second part says that कि आजकल के टाइम पे you people have seen that जो लोग बुलेट चलाते हैं मोस्टली, सो बुलेट की पहचान है उसकी आवाज, the sound that it creates, okay, but according to me, like आप कहाँ पर व्हीकल चला रहे हो वो भी मैटर करता है. Like if you are traveling somewhere around the hospitality area, so according to me when you enter into the hospitality area, आपको बुलेट का जो साइलेंसर है वो ऑन कर देना चाहिए, because the sound that it is creating, आपको तो लग रहा है कि it is very like it looks very good, but if there is a person who is on the ventilator, अगर उसके लिए वो साउंड एनर्जी प्रॉब्लमेटिक हो गई, सो दैट इज नॉट गुड. एंड इवन पहले जो व्हीकल्स बनाए जाते थे, जो मोटर व्हीकल्स बनाए जाते थे, उसमें से काफी ज्यादा व्हील्स वगैरह से साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती थी. तो अब धीरे धीरे हम लोग, क्या रीजन है वो व्हील से साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होने का, बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करके वी आर ट्राइंग टू हैव अ व्हीकल्स हु हैव अ स्मूथ वर्किंग, जिसके अंदर से एक्स्ट्रा साउंड एनर्जी वगैरह यूज मतलब प्रोड्यूस ना हो. सो इवन फॉर दैट डेवलपमेंट साउंड एनर्जी और एकॉस्टिक डिपार्टमेंट का यूज किया जाता है. इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? समझो? सो आपकी व्हीकल्स अगर ज्यादा रियर एंड टियर का वॉइस क्रिएट करती है, सो यू विल नॉट फाइंड इट गुड. सो वो सारी चीजों में भी डेवलपमेंट क्रिएट करने के लिए आज के टाइम पे साउंड एनर्जी का और एकॉस्टिक डिपार्टमेंट का यूज करते हैं. ओके, गो अहेड फॉर द नेक्स्ट, क्वालिटीज ऑफ साउंड. Qualities Shraddha, start of reading. sound. Wait, Divya. Shraddha, start reading. Shraddha, unmute करो. Quality of sound, audible sound or human response to sound. Whenever we talk about audible sound, what matter is how we Perceive it. perceive it. This is purely a subjective attribute of sound wave. Measure quality of sound that are our interest are pitch, timbre or quality, and loudness. Now wait. The very first thing that we are going to study is pitch. अब ये pitch का मतलब क्या है पहले वो समझा देती हूँ. Then we will enter into the paragraph of your book. See, pitch का मतलब क्या होता है? Normally ऐसा बोला जाता है कि गर्ल्स बात करने में बहुत तेज होती है as compared to boys. मतलब अगर आप एक लड़की को बिठा दो और एक लड़के को बिठा दो और बोलो कि बातें करो, तो वो बेचारा 2 मिनट तक तो बैठा ही रहेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा. बट गर्ल्स का ऐसा होता है कि विद इन 1 मिनट उनकी बहुत सारी बातें हो जाती है, मतलब दे हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू टॉक. सो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि गर्ल्स स्पीक्स अ लॉट एंड बॉयज जो होता है वो थोड़ा सा स्लोली बोलता है. मैम अभी क्या बोल रहे हो? रीजन इज, अगर जो गर्ल्स बोलती हैं वो गर्ल्स का ऐसा होता है कि वो 1 सेकेंड के अंदर दे कैन क्रिएट लॉट्स ऑफ वेव्स, मतलब वो 1 सेकेंड में बहुत सारी बातें कर सकती है. बट बॉयज का ऐसा नहीं है. बॉयज का ऐसा है कि वो 1 सेकेंड में गिन चुन के 3-4 शब्द ही बोलता है. मतलब ये आपने अपने घर पे भी एक्सपीरियंस किया होगा कि व्हेन योर मॉम स्पीक्स एंड व्हेन योर फादर स्पीक्स, मम्मी का बहुत फटाफट होता है, एकदम जल्दी बोलेंगे, और फादर्स का बहुत स्लोली बात होता है, मतलब दे विल स्पीक लिटिल. एंड गर्ल्स का ऐसा होता है कि 1 सेकेंड में इतनी सारी बातें हो जाएंगी कि मतलब आधी बात समझेगी आधी बात समझेगी भी नहीं सामने वाले.
This happens. This is very natural and it is scientifically proved. So girls का जो pitch होता है वो high होता है as compared to boys, क्योंकि girls एक सेकेंड में बहुत सारी waves generate कर सकती है. So अगर एक सेकेंड में waves ज्यादा generate हो रही है मतलब frequency ज्यादा है. So जिसकी frequency ज्यादा होती है उसका pitch high होता है और जिसकी frequency कम होती है उसका pitch low होता है. Is this very clear what I am trying to say? समझ में आया मैंने क्या कहा? So girls एक सेकेंड में बहुत सारे waves generate कर सकते हैं इसलिए उनका pitch ज्यादा होता है और boys एक सेकेंड में कम waves generate करते हैं इसलिए उनका pitch low होता है. This is one reason. Second reason is अगर आपने कभी observe किया हो कि जब कोई बोलता है और किसी पर्सन की का साउंड ऐसा होता है कि वो साउंड आके आपके कान में चुभ जाता है एंड आप बोलते भी हो कि यार प्लीज थोड़ा दूर से बोलना, तेरा जो साउंड है वो कान में चुभता है. सो ये जो चुभने वाली बात है ये भी आपके पिच को डिफाइन करती है. जिसकी पिच ज्यादा होती है उसका जो वॉइस होता है वो बहुत ही श्रिल होता है, शार्प होता है, वो आके आपके कान में चुभ जाता है. और जिसका पिच लो होता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी लो होती है, उसकी जो वॉइस होती है वो थोड़ी मोटी होती है. सो बेसिकली बॉयज और गर्ल्स की वॉइस को अगर आप कंपेयर करो तो अगर आपकी आंखें बंद कर दी जाए और देयर इज सम मेल टीचर और देयर इज अ फीमेल टीचर तो आप आराम से रिकॉग्नाइज कर लोगे कि कब फीमेल टीचर बोल रहा है और कब मेल टीचर बोल रहा है. क्योंकि फीमेल टीचर की जो वॉइस होगी वो काफी पतली होगी एज कम्पेयर टू द मेल टीचर. मेल टीचर की वॉइस थोड़ी सी मोटी होती है. सो कितना शार्प है, कितना ब्रॉड है, वो सारी चीजें फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है. गर्ल्स की फ्रीक्वेंसी हमेशा हाई होती है इसलिए उनका पिच हमेशा हाई होता है और बॉयज की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कम होती है इसलिए उनका पिच कम होता है, उनकी वॉइस जो होती है वो ब्रॉड होती है. इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो पिच इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी हाई मतलब पिच हाई, फ्रीक्वेंसी लो मतलब पिच लो. इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई सेड? नेक्स्ट इज टिम्बर. टिम्बर का मतलब क्या है? टिम्बर का मतलब होता है क्वालिटी. क्वालिटी इन द सेंस फॉर श्योर अगर मैं गाना गाऊंगी तो तुम लोग सो जाओगे, ठीक है? आई कैन ओनली टीच यू फिजिक्स. श्रद्धा हाँ भी बोल रही है, यस मैम. दैट इज वेरी श्योर कि अगर मैं गाना गाऊंगी तो यू विल नॉट फाइंड इट गुड. बट वहीं पे अगर आपको यहाँ पे फिजिक्स का लेक्चर चलाने के बदले मैं बोलूँ कि अगर लेट्स लिसन टू द सॉन्ग्स ऑफ द वेरी फेमस सिंगर. अभी कौन सा फेमस सिंगर चल रहा है? जुबिन. क्या नाम है उसका? जुबिन समथिंग, राइट? किसी को पता है अभी का जो फेमस सिंगर, काफी फेमस सिंगर चल रहा है? क्या तुम लोग गाना नहीं सुनते हो? अरमान मलिक. अरमान मलिक. चलो ठीक है, अरमान मलिक ले लिया. तो अगर मैं अभी ये जो आप लोग को फिजिक्स पका रही हूँ उसके बदले अगर मैं अरमान मलिक का गाना बजा दूं तो यू विल फील सो गुड कि वाओ कितनी अच्छी चीज चल रही है. सो आई डोंट नो, मुझे नाम से मोस्टली सिंगर्स याद नहीं रहते बट दैट इज वेरी ट्रू कि मेरा जो साउंड क्वालिटी है और सिंगर का जो साउंड क्वालिटी है वो डिफर करता है. ऑफकोर्स वो सिंगर का साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा होगा और मेरा साउंड क्वालिटी ऐसा होगा कि आप लोग 1 घंटा सुन लो काफी है, राइट? वो भी जबरदस्ती. सो ये जो क्वालिटी है साउंड की, जिस किसी की क्वालिटी आपको अच्छी लग रही है, किसी की क्वालिटी आपको अच्छी नहीं लग रही है, इसी क्वालिटी को हम टिम्बर के नाम से पहचानते हैं. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज टिम्बर ऑफ साउंड. इज दिस वेरी क्लियर? सो जो साउंड की क्वालिटी अच्छी होती है उसका टिम्बर अच्छा माना जाता है और जो साउंड की क्वालिटी इज नॉट गुड उसका टिम्बर लो माना जाता है, मतलब बैड क्वालिटी का माना जाता है. एंड ऑफ कोर्स अगेन इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. कुछ लोगों को नेहा कक्कर पसंद है, कुछ लोगों को नेहा कक्कर नहीं पसंद है. सो ऑफ कोर्स दैट डिपेंड्स ऑन द लाइकिंग आल्सो. इज दिस वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इज टिम्बर? टिम्बर इज रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ साउंड. कि साउंड की क्वालिटी क्या है. सो लेट्स गो अहेड. Who was ready? Shraddha, start reading. Pitch. This except refer to sharpness or shrillness of the sound. If the frequency of sound is increased, what we perceive is the increase in the pitch, or we feel the sound to be sharp. Tone refer to the single frequency of that wave, while a note may contain one or more Take this tone. line. Tone refers to the single frequency of that wave, while the note may contain one or more than one tone. जो सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है उसको टोन बोलता है और जो बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज के साउंड एक साथ मिक्स होकर आते हैं उसको नोट के नाम से जाना जाता है. सारे गामा पादा नहीं से और नोट. सा का अलग फ्रीक्वेंसी होता है, रे का अलग फ्रीक्वेंसी होता है. आर यू क्लियर व्हाट आई सेड?
So note is having different frequencies together, and tone is having a single frequency at a time. Go ahead. We use the word high pitch and high tone if frequency is higher. As the sharpness is the subjective term, sentence like sound of double frequency is doubly sharp. Make no sense. Also, a high pitched sound need not be louder. Tones of guitar are sharper than that of a bass of guitar. Sound of tabla is sharper than that of dhaga. In general, female sound is sharper than that of male sound, and so on. For a sound amplifier or equalizer, when we raise the treble knob or treble bottom, higher frequencies are boosted, and if we raise bass knob, low frequency are boosted. Timbre. During telephonic conversation with a friend, mostly you are able to know who is speaking at the other end, even if you are not told about who is speaking. Quite often we say, couldn't you recognize the voice? The sound quality in this context is called timbre. Same sound played on guitar, a violin, or harmonium, or a piano feel significantly different, and we can easily identify that instrument. Quality of sound of any sound instrument, including our vocal organ, depending upon the mixture of tone and overtone in the sound generated by that instrument. Even our own sound quality during morning, after we get up, and in the evening is different. It is drastically affected if we are suffering from cold or cough. Concept of overtone will be discussed during 12th standard. Third, loudness. Now wait. Now before going to loudness, मैंने कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को? मिस आपने बोला था रीड करके आना, ओरल लूंगी मैं आज. ओरल बोला था? हाँ मिस. और व्हाट अबाउट डेरिवेशंस? डेरिवेशंस कुछ प्रैक्टिस करने के लिए दिया था? नहीं. होमवर्क लिख के लो. Newton's correction, Newton's formulation, Laplace correction, dependence, third question, dependence of sound on pressure, dependence of sound on temperature, मिस लैप्लेस करेक्शन के बाद क्या बोला आपने? dependence of sound on pressure, dependence of sound on temperature, and dependence of sound on humidity. You people don't have college right now, right? नहीं ना? Yes, miss. हाँ, तो फिर तो तुम लोग आराम से घर पे बैठ के कर सकते हो. All the derivations for 3 times. कितने टाइम मिस? 3 times. यस मिस. So आज आराम से बैठ के ये सारे डेरिवेशंस आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं यार से. ठीक है, चलो थोड़ा सा लाउडनेस के बारे में छोटा सा एक्सप्लेनेशन देती हूँ, एंड देन वी विल स्टॉप. सो लाउडनेस समझने से पहले हमको इंटेंसिटी समझनी पड़ेगी. सो जस्ट गिव मी अ मिनट सो दैट आई कैन सेट माय कैमरा. फिर उसके बाद हम थ्योरी पढ़ेंगे.
Can you people see my page? Yes, miss. Okay. So पहले intensity समझो and then loudness I'll teach you in the next lecture. What is intensity? बहुत ध्यान से समझो बच्चों, it is very important. ये नहीं समझा तो loudness नहीं समझेंगे. समझो if this is the speaker. जब घर पे speaker बजाते हो ना, that. Intensity का मतलब क्या होता है कि इस स्पीकर के यूनिट एरिया से इन अ यूनिट टाइम, इस स्पीकर के यूनिट एरिया से यूनिट टाइम है, यूनिट टाइम मीन्स 1 सेकेंड यू कैन से, जो एनर्जी एमिट होती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी. सो इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया per unit time, and intensity can be defined as energy emitted per unit area, एक unit area से per unit time, एक unit time में जो भी energy emit होती है that is what is called as intensity. समझ में आया intensity क्या है? क्लियर हुआ? So speaker के unit area से unit time में जो भी energy emit होती है that is what is called as intensity. Is this very clear? Is this very clear? Now, let's try to find out the unit of intensity. Energy is measured in joules. SI unit of energy is joule, right? Area is measured in meter square. Time is measured in second. So intensity का unit is joule meter square second. Joule per meter square second. Now, understand this. Power is work done upon time. Is this very clear? Work done is measured in joule. Energy and work done दोनों का same ही units and dimension है. Work done is measured in joule. Time is measured in second, right? So power is joule per second. But जो power वाला scientist है, जेम्स वॉट, उसने बोला भाई मुझे पावर का यूनिट जूल पर सेकंड नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? वाट चाहिए. दिस इज वेरी क्लियर. एंड दिस इज द रीजन कि पावर का ऐसा यूनिट इज वाट, बट लिखा जाता है कि वाट का मतलब होता है जूल पर सेकंड. इज दिस वेरी क्लियर? जैसे न्यूटन ने अपना नाम डाल दिया फोर्स के यूनिट में, वैसे ही पावर के साइंटिस्ट ने अपना नाम डाल दिया, अपना सरनेम डाला कि मेरा जो पावर है वो वाट में मेजर होगा. So joule per second is actually a watt, and watt is represented by capital W because it is the name of the scientist. उसका symbol of course capital W में represent किया जाएगा. Are you understanding what I'm trying to say? So here this is joule per second, right? So joule per second is replaced by watt. So intensity का unit is watt per meter square. This is very clear? समझ में आया सबको? Yes, miss. Okay. So I'm repeating it. What is intensity? Intensity का मतलब होता है the amount of energy emitted from a unit area in a unit what? In a unit time. ठीक है? Amount of energy emitted per unit area per unit time. Energy is measured in joules. Area is measured in meter square. Time is measured in second. Joule per second is the unit of power, which is your watt. So joule per second is replaced by watt. So intensity ka unit is watt per meter square. Is this very clear? So we will continue from here. I'll revise it again in the next lecture, and then we will go for the loudness. Okay. So bye everyone. Take care.